Good morning, students. Welcome once again to my class. And this video is for class 7. Today we'll continue our chapter of geography, that is the natural vegetation and wildlife. So, one topic is left in this chapter, that is wildlife. So, let's continue with the topic. What is wildlife? The animals with their natural surrounding together are known as wildlife. The animals and their natural surrounding where they used to live in, whether they used to live in the grassland or in the forest, are their natural surrounding together means these surrounding also include and are known as wildlife. The animal species is known as fauna. As I've told you, fauna is all the living species of animals that found on the earth or on a particular area, that is known as fauna. Different species of fauna are found in different regions of the world. So, different species of fauna, different species of animals are found in different regions or different parts of the world. This distribution is based on the types of vegetation provided around them. This distribution is based on the types of vegetation, means the types of plants and types of grasslands, forest provided around them, and wildlife is most comfortable in forest. सबसे ज़्यादा जानवरों की प्रजातियां कहाँ पे रहती हैं? जंगलों में, बिकॉज ऑफ द मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम इंसानों की आवाजाही होती है या उनका इंटरफेरेंस, उनका दखल बहुत कम होता है जंगलों में. एंड द नेचुरल सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर, आसानी से और अच्छी मात्रा में जानवरों के लिए खाना अवेलेबल होता है जंगलों में, साथ में पानी. एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स फ्री एरियाज अवेलेबल टू द वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट, सो दे कैन मूव फ्रीली, एंड स्पेस फॉर मोबिलिटी एंड ब्रीडिंग. उनके रहने के लिए, उनके घूमने के लिए, उनके ब्रीडिंग पीरियड के लिए या ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस होता है जंगलों में. इसलिए ज़्यादातर जानवरों की प्रजातियाँ कहाँ पे रहती हैं? फॉरेस्ट एरियाज़ में. ब्रीडिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय एनिमल्स, reproduction process in which they give birth to their young ones, and or if they lay their eggs. And wildlife is the tropical regions, mostly comprises monkeys, bats, tree lizard. Wildlife कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्टली कैसे पाए जाते हैं? जैसे कि मंकी, बैट्स पाए जाते हैं, ट्री लिजर्ड्स होते हैं, स्लॉथ्स, एप्स एट्सेट्रा. Living on trees and snakes, alligators, turtles, crocodiles, living in rivers and swamps. And the tropical wildlife has evolved according to the natural vegetation. In Africa, the hippopotamus is also found, and other animals like tigers, rhinoceros, leopards, and lions are found in मॉनसून फॉरेस्ट. तो मॉनसून फॉरेस्ट में ये सारे जानवर पाए जाते हैं. एंड एनाकोंडा आर फेमसली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स. नाउ वाइल्ड लाइफ इन टेम्परेट रीजन्स. टेम्परेट रीजन्स में कैसे जानवर पाए जाते हैं? सो डियर, फॉक्सेस, ब्रेवर्स, बीवर्स, wolves, monals and pheasants. So they have the adaptability to the changing seasons of the temperate region. तो ये जानवर जो होते हैं जैसे कि डियर, फॉक्स, बीवर्स, ये बदलते हुए मॉनसून के साथ साथ अपने आप को उस तरीके से चेंजिंग सीजन के साथ खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, इसलिए ये टेम्परेट रीजन्स में सर्वाइव कर पाते हैं. एंड कंपेयर टू दिस रीजन, द मेडिटेरेनियन रीजन हैज़ लिटिल वाइल्ड लाइफ. अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो वहाँ के कंपैरिजन मेडिटेरेनियन रीजन में बहुत ही कम वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जंगली जानवर पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ इन ग्रास लैंड्स. इसके अलावा
वाइल्ड लाइफ ग्रासलैंड में भी पाई जाती है, घास के मैदानों में भी पाई जाती है. जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ इन ग्रासलैंड इन इज कार्निवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस. हाइनाज, zebras, wild buffaloes, leopards, panthers are dominant species in a tropical grassland. In temperate grassland, wild asses, dogs, rabbits, and antelopes rule. Wildlife in desert is small in size. तो जैसे मैंने बताया, घास के मैदानों में जो ज़्यादातर कार्निवोरस एनिमल्स या हार्बीवोरस पाए जाते हैं. और आपने अभी तक मैंने जैसे हाइनास, जेब्रास, जितने भी जानवरों के नाम लिए जो घास के मैदान में आसानी से खुद को छुपा के रह सकते हैं, वही जानवर घास के मैदान में पाए जाते हैं. एंड वाइल्ड लाइफ इन डेजर्ट इज़ स्मॉल इन साइज़. और अगर हम वाइल्ड लाइफ जो कि डेजर्ट एरियाज़ में बात करें तो वहाँ पे छोटे साइज़ के जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है या एकदम ही नहीं होता है. पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, बहुत डिस्टेंस पे होते हैं या फिर नहीं होते हैं. कैमल इज़ द ओनली एनिमल विथ इट्स साइज़. कैमल ही सबसे बड़ा जानवर वहाँ पे होता है. एंड सुपर एडेप्टेबिलिटी टू डेजर्ट. और उसके अंदर क्षमता होती है कि वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सके कई दिनों तक. Other animals like jackals, foxes and hyenas are active mostly during the night. इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर रहते हैं जैसे कि जैकाल्स, फॉक्सेस, हाइनास, ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कब? सिर्फ रात के समय में. नाउ विल डिस्कस the last point of this chapter, that is wildlife in the polar regions. polar regions जहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा कम रहता है, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो खुद को यहाँ की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर चुके होते हैं. यहाँ पे उन्होंने ढाल लिया होता है, खुद को यहाँ पे रहने के काबिल बना लिया होता है. दे हैव थिक स्किन. और इनकी जो स्किन होती है, फर होती है, बहुत मोटे होते हैं. कोटेड विथ फर टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम कोल्ड. ताकि यहाँ जो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी होती है, इतना ज़्यादा ठंड होती है, उससे इनको बचाए रख सकें. कैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं? मस्क ऑक्स, polar bears, wolf, arctic fox, walrus, reindeer and seal are common examples. Now one passage is given in this chapter that an endangered animal is an animal species that is at the brink of becoming extinct. So what is the meaning of endangered? Means the animals who are in danger of disappearing from the world. मीन्स जो खतरे में हैं या फिर एकदम संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो अब यहाँ से दुनिया से ख़त्म हो रही हैं, वो स्पीसीज़ होते हैं इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज़. एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एन एनिमल स्पीसीज़ मीन्स नो लिविंग एनिमल ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज़ टू बी अलाइव. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, कि मतलब कि इस प्रजाति का एक भी जानवर अब पृथ्वी पे जिंदा नहीं बचेगा या बचा है. सो देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट. तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि डायनासोर सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो विलुप्त हो चुके हैं, पृथ्वी से गायब हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, मैमोथ, डोडो बर्ड्स एट्सेट्रा. Endangered animals are the animals that have a very few members of their species left. तो इंडेंजर्ड मीन्स वो प्रजातियाँ जो कि अभी संकटग्रस्त हैं, मीन्स खतरे में हैं, अभी पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुई हैं लेकिन खतरे में हैं, उनके नंबर बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम मात्रा में गिने चुने ही जानवर उस प्रजाति के बचे हुए हैं. एंड सम ऑफ देम आर, उसमें के कुछ एग्जांपल है साइबेरियन टाइगर, leatherback seal turtle and snow leopards etc. are example of these animals.